आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज टू अंडरस्टैंड द implications of doctrines of ultra wires, constructive notice and indoor management, which governs the interpretation of the memorandum and article of association, MOA and AOA. Okay, these doctrines deal with the right and duties of a company with respect to the members, amongst the members and of the company with the outsiders. Okay, ये डॉक्ट्रिन क्या डील करते हैं? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स, कंपनी का मेंबर्स के साथ, कंपनी मेंबर्स के आपस में, एंड ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर, और आउट कंपनी का आउटसाइडर के साथ। ओके, फर्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। होती क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? व्हेन अ कंपनी exercises its power to promote and or realize any of its objectives stated in MOA, it is intrawires, that is within the power of a company. Okay, MOA के अकॉर्डिंग जब कोई कंपनी काम करती है, that means intrawires. Okay, however, any other act of the company which is outside the scope of the objects clause of the memorandum of association is known as ultra wires, beyond the power of the company. इंट्रा वायर्स में आपने याद रखना है, that is within the power. ठीक है, अल्ट्रा वायर्स में beyond the power of the company. ओके, अभी डिस्कस करेंगे हम इनको। यहाँ पे एक केस स्टडी बताई हुई है, द रूल ऑफ द लॉ on the question of doctrine of ultra wires has been clearly and emphatically laid down by the House of Lords in Asbury Railway Carriage and Iron Company versus Riche 1875. The facts of this case are as under. Asbury Company was incorporated with the objectives to manufacture and sell railway carriages. ओके, एसबरी कंपनी जो है सिर्फ मैन्युफैक्चर और सेल ही करेगी रेलवे कैरेजेस को ओनली, एंड to act as the mechanical engineers and general contractors. Okay, the directors of the company had contracted with Riche to finance the construction of the railway line. This is outside, this contract is going outside of the company, according to the MOA of the company. Okay, तो outside का मतलब है beyond the power of ultra wires, they are breaching the MOA of the company. Subsequently, directors repudiated the contract on the ground that it was ultra wires to the company. तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, एंड रिसे ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रिसे कंपनी ने क्या कह दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन उन पे लगा दिया। सो हाउस ऑफ लॉर्ड ने बोला, हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स, कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है इसलिए नल एंड वॉइड है। हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, विच कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड? आंसर इज अल्ट्रा wires, because these are the beyond the power of company, power or beyond the MOA of a company. Company cannot act beyond the power, beyond its MOA or beyond its power. Okay, it was laid down that the company came into existence for the achievement of the objectives as stated in the objective clause. Okay, these objectives affirmatively state the activities that the company can undertake, carry, and it states negatively that nothing shall be done beyond the ambit of the objectives for which the company is established. Okay, the general contractors was meant to be read as making such type of contracts generally that are connected with the business of mechanical engineer, and it is not so interpreted
then it would authorize the making of contracts of every nature and description. Hence, it was entirely beyond the power of company to enter into the contract. यहीं पे यही बोला गया है कि they will be a general contractor and mechanical engineers, the company. So this contract was totally beyond the power of company. So that's why it is null and void. Ultra wires contracts are null and void. ओके, अब देखते हैं पर्पस क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का. द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज introduced to safeguard the creditors and investors of the company. Okay, the doctrine of ultra wires prevents the company from using the money of the investor other than those mentioned in the object clause of the memorandum. Hence, both the investors and company must be assured that their investment will not be used for the objects or activities which they did not have specified at the time of investing money in the company. This ensures that the funds of investors wouldn't be dispersed in unauthorized activities by the company. The wrongful use of the company's assets may result in the insolvency of the company, a situation where the creditors of the company are not being paid. ये क्या बोल रहे हैं ये अल्ट्रा वायर्स जो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इंट्रोड्यूस की गई है क्रेडिटर और इन्वेस्टर कंपनीज के क्रेडिटर और इन्वेस्टर को सेव करने के लिए. ठीक है, ये कंपनीज को प्रिवेंट करते हैं इन्वेस्टर का पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से. ओके, गलत जगह का मतलब है जो एमओए जो डिसाइड हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अलावा एमओए में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अलावा कहीं और कंपनी इन्वेस्ट करती है तो that will be outside the purview of these objectives and that will be null and void. और इसको क्या बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ द कंपनी प्रिवेंट्स द रॉन्गफुल यूज ऑफ द कंपनीज एसेट. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायर्स सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स of the company prevents the wrongful use of company's asset, thereby protecting the creditors. Creditors को protect करती है. Also, the doctrine of ultra vires prevents the directors from diverting the objects for which the company has been formed out and hence constantly examining the activities of the director. और constantly क्या examine करती है directors की activity. It helps the directors to know within what lines of business they are eligible to act. Okay. अब देखते हैं ब्रीच ऑफ अथॉरिटी. डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स क्या होते हैं एजेंट्स होते हैं कंपनी के. हेंस दे मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी. इफ दे इंड्यूस हाउएवर इनोसेंटली एन आउटसाइडर to contract with the company in a matter in which the company does not have powers to act, they will be personally liable to such an outsider for his loss, provided that the outsider has no knowledge of the fact that the act was ultra vires of the company. Okay, ये क्या कह रहे हैं अगर कोई भी डायरेक्टर डील कर लेता है आउटसाइडर के साथ, ठीक है, तो दैट इज outside the purview of MOA, that deal would not be legitimate. ओके, तो इसके लिए पर्सनल लायबल होंगे डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल टू द आउटसाइडर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ MOA एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है. What is meant by the constructive notice or the MOA and AOA? The memorandum of association and articles of association of a company are registered with the registrar of companies. MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के रजिस्टर होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एट द टाइम ऑफ दियर इनकॉर्पोरेशन. ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं MOA एंड AOA.
ओके, ये रजिस्टर होते हैं आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, और दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। Okay. As the office of the registrar is a public office, the MOA and AOA becomes a public document. Hence, the Act expressly guarantees the right of the inspection of these documents to all. We can all public can access easily these documents. Okay. It is therefore the duty of every person who deals with the company to inspect its public documents. जो कोई भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो इंस्पेक्ट करें इन डॉक्यूमेंट्स को, दैट इज व्हाट दे आर, व्हाट इज एमओए एंड व्हाट इज रिटन इन एओए। ओके, एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रोविजंस, so as to safeguard himself against the company, because the contract that he is making with the company should be in accordance with the MOA and AOA of the company, so as to safeguard himself. Okay. However, whether a person has actually read them or not, he shall be in the position that as if he had read them. As if he had read them. अगर पर्सन ने पढ़े भी हो चाहे नहीं पढ़े हो, ये पोजीशन बन जाती है कि उसने, कंपनी की तरफ से ये पोजीशन बन जाती है कि उसने वो चीज़ पढ़ी हुई है, तभी वो कंपनी के साथ डील कर रहा है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ एमओ एंड एओए। इन अदर वर्ड्स, ही विल बी प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज, ही विल बी प्रिज्यूम टू हैव knowledge of the contents of these documents and to have understood them according to their proper meaning. Okay, this kind of presumed notice is known as constructive notice. This is known as doctrine of constructive notice. और किसी पर्सन ने किसी भी पर्सन को ये ये पहले ही प्रिज्यूम कर दिया जाता है डील होने से पहले कि वो पर्सन जो है, उस पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं और समझा हुआ है उनको, एक एक प्रॉपर एक एक मीनिंग को, and all those are in accordance with the MOA and AOA. Such kind of presumed notice is known as constructive notice. Okay. अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। द फॉलोइंग्स आर द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। ही हु डील्स with the company is deemed to have, he is deemed to have notice of the public documents, whether he has actually seen them or not. Okay. Another effect is that a person dealing with a company, कोई पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ, इज नॉट ओनली डीम टू हैव नोटिस बट इज आल्सो प्रिज्यूम टू हैव रेड दोज डॉक्यूमेंट्स एंड टू हैव अंडरस्टूड नॉट ओनली द कंपनीज पावर्स बट आल्सो ऑफ इट्स ऑफिसर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज ऑफ नेगेटिव नेचर। नेगेटिव नेचर में क्यों है? Because it stops a person from contending or arguing that he had no notice of the contents of the documents. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इससे सारी की सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर हो जाएगी? द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। ओके, सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी होगी? पर्सन की होगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैज रेड वेरी वेल and understood very well the MOA and AOA of the company. Okay, so it is the responsibility. So it is the responsibility of the party entering into a contract to collect, read, and understand the documents. The constructive notice simply means that the notice was given even without an actual notice existing. Okay. Constructive notice का मतलब क्या है? That the notice was given even without an actual notice existing. एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं इसका। When a court is unable to directly reach someone and publishes a summon in the public newspaper, तो इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकता है। ओके, पब्लिक डॉक्यूमेंट है न्यूज़पेपर भी। सो इसको क्या कंसीडर करेंगे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और कोर्ट कहीं पे किसी पर्सन के पास रीच नहीं हो पा रही है कोर्ट की चिट्ठी या कोर्ट का समन, तो कोर्ट डायरेक्टली क्या करती है? न्यूज़पेपर में, पब्लिक न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है। ओके, thus if any person enters into a contract which is inconsistent with the company's MOA and MO
AOA, he shall not acquire any right against the company and he shall bear the consequences himself. याद रखना, जब पर्सन खुद बियर करेगा, लायबिलिटी किसकी होगी? जब पर्सन की होगी, तो वो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके, श्योर शर्ट। यहाँ से तीन टॉपिक हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। 0.5 मार्क्स इंटू 3 कर दीजिए आप, 1.5 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे इन तीन टॉपिक से। ये मिनिमम है, दिस कैन बी अप टू 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या करती है? सीक्स टू प्रोटेक्ट द, कंपनी को प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर से। कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रिंसिपल क्या है कि वो प्रोटेक्ट करेगी कंपनी को आउटसाइडर से। और जब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। जब जो आउटसाइडर है उसको प्रोटेक्ट करती है डॉक्ट्रिन, तो उसको क्या बोलेंगे? Doctrine of indoor management. A person who deals with the company is deemed to have read the document, understood the registered public documents such as MOA and AOA, extra to see that his contract with the company is not inconsistent with them. Okay. But he is not bound to inquire into the regularity of the company's internal functioning or internal management of the company. सपोज कीजिए कि पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ भी लिए और अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को, बट वो पर्सन जो है बाउंड नहीं है कि वो टोटल इंक्वायरी करे कि रेगुलेटरी इंटरनल फंक्शनिंग क्या है कंपनी की और इंटरनल मैनेजमेंट क्या है कंपनी की। ठीक है, हेंस इफ हिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्टेंट विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसिस्टेंट है in accordance with public document, the company is bound. Then the company is bound. In such cases, the company will be bounded. He will not be affected by any irregularity in the internal management of the company. जब कोई पर्सन जो है किसी भी, he will not be affected by any irregularity in the internal management of the company. This will be known as doctrine of indoor management. जब person will not be affected, पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा किस चीज का? इंटरनल इरेगुलरिटीज का, इंटरनल इरेगुलरिटीज ऑफ कंपनी, लरिटीज ऑफ कंपनी। तो इसको क्या बोलेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इस चीज को लाइन रख लीजिए, आप इस चीज को याद रख लीजिए, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको दोनों याद हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स, क्या प्रोटेक्ट करती है? कंपनी अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द थर्ड पार्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या प्रोटेक्ट करती है? किसको प्रोटेक्ट करती है? कंपनी को। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द क्लेम ऑफ थर्ड पार्टी। व्हाइल द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द कंपनीज प्रोसीजर्स। ओके, सो ऑल थ्रीज आर कवर्ड। काइंडली एक बार छोटी सी रीडिंग मार लेना इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों से हाफ मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आएंगे ही आएंगे ये। ओके, थोड़े से ये देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। Doctrine of ultra wires lays down that every outsider is assumed to have the MOA and AOA. That is false. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में नहीं होता है ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम क्या सपोज करते हैं, क्या प्रिज्यूम करते हैं कि एवरी आउटसाइडर इज एज्यूम्ड टू हैव रेड द एमओए एंड एओए। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस स्टेट्स दैट द आउटसाइडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लायंस ऑफ इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि आउटसाइडर आउटसाइडर कब रिक्वायर्ड नहीं होता है कि वो कंप्लायंस देखे इंटरनल रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी? इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दिस केस इज द इंडोर, दिस इज द केस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लेज डाउन दैट अ कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन द ऑब्जेक्ट्स नॉट परमिटेड बाय इट्स
MOA, ठीक है, दिस इज फॉल्स, अगेन फॉल्स, ऑल आर फॉल्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं आएगा, दिस इज अल्ट्रा वायर्स, व्हाट इट इज, अल्ट्रा वायर्स, ओके, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्योंकि अल्ट्रा वायर्स में क्या होता है, कंपनी जो है MOA के आउटसाइड परव्यू पे नहीं जा सकती है, दिस हैज टू, कंपनी हैज टू within the within the purview of MOA. Okay, so that's it, friends. Thank you.